بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نکیرہ اور معرفہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ النکرۃ والمعرفۃ۔ النکرۃ والمعرفۃ، اردو میں ہم اسے ایسے لکھتے ہیں، نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ کہتے ہیں کسی بھی عام چیز کو، عام اسم کو، اور معرفہ کہتے ہیں کسی بھی خاص چیز کو، خاص اسم کو۔ نکرہ اور معرفہ عام و خاص۔ نکرہ کو انگلش میں کامن ناؤن بھی کہتے ہیں اور معرفہ کو پراپر ناؤن بھی کہتے ہیں۔ نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز کو بتائے، جیسے رجل، رجل کوئی مرد، ایک مرد۔ یہ بتا رہا ہے رجل کہ کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی خاص آدمی سمجھا نہیں جائے گا۔ اسی طرح آپ دوسرا لفظ لے لیجیے، قلم، کوئی قلم، ایک قلم۔ بنت، کوئی لڑکی، ایک لڑکی۔ ماء، کچھ پانی۔ پانی میں آپ کوئی پانی، ایک پانی نہیں کہیں گے، کچھ پانی۔ یہ نکرہ کسی عام چیز کو بتاتا ہے، جو بھی آپ کو عام بولنی ہو، خاص نہ ہو، تو اس کو آپ نکرہ کہیں۔ اور نکرہ کی پہچان عربی میں عام طور پر یہ ہے کہ اس کے آخر میں دو پیش ہوتی ہیں، یا دو زبر ہوں گے یا دو زیر، یعنی کہ اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ وہ تنوین دو پیش کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، دو زبر کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، جیسے یہاں پر ہے رجلن، اور دو زیر کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، جیسے رجلن۔ یہ کسی بھی صورت میں دو پیش، دو زبر، دو زیر کی صورت میں آ سکتی ہے، تو یہ عموماً نشانی ہے نکرہ ہونے کی۔ لیکن ہر جگہ یہ نشانی نکرہ کی نہیں ہے۔ وہ جگہیں کون سی ہوں گی آگے چل کے انشاءاللہ تھوڑی سی ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور معرفہ جو ہے وہ ایک خاص چیز کو بتاتا ہے، جیسے قلم کا ترجمہ تھا کوئی ایک بھی قلم۔ جیسے میں کسی طالب علم سے مانگوں کہ بھائی قلم دے دو، تو کوئی بھی قلم دے سکتا ہے، اے بی سی کوئی بھی قلم دے سکتا ہے۔ لیکن اگر میں اسی قلم کو خاص کرنا چاہوں، القلم، القلم، تو یہ خاص ہو گیا۔ خاص کیسے ہوگا؟ اس کا ایک قاعدہ ہے کہ عام سے خاص کرنے کے لیے، یعنی معرفہ کی قسمیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں۔ ان قسموں میں جو آپ کو میں آج پڑھاؤں گا وہ صرف ایک قسم ہے کہ اگر کوئی چیز نکرہ ہو، اس کو معرفہ بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ قلم، یہ عام قلم ہے، کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے۔ اس قلم کو آپ نے خاص کرنا ہے تو اس پر الف لام داخل کرنا ہے۔ الف لام، آگے وہی قلم، القلم۔ اب اس پر ایک پیش آئے گا، دو پیش نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ دو پیش نشانی ہے عام کی اور الف لام نشانی ہے خاص کی، تو اگر ہم اس پر آخر میں دو پیش بھی دے دیں تو گویا عام اور خاص دونوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، اور وہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی الف لام ہوگا وہاں پر آخر میں دو پیش نہیں ہو سکتے، دو زبر نہیں ہو سکتے، اور دو زیریں نہیں ہو سکتی۔
पेश होगा तो एक, ज़बर होगा तो एक, ज़ेर होगी तो एक। किस वजह से? अलिफ लाम की वजह से, क्योंकि अब ख़ास बन चुका है और ये तनवीन निशानी है आम की, तो ख़ास और आम दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। कलमुन, आम कलम था, कोई भी कलम। अल कलम, ये अब ख़ास हो गया। कैसे ख़ास हो गया? मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त यहाँ पढ़ा रहा हूँ और मैं कलम से लिख रहा हूँ, तो ये वाला कलम जो है मेरे पास ख़ास है। कलम तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त जिसके साथ मैं लिख रहा हूँ ये ख़ास है। अगर मैं इस वक्त किसी तालिब इल्म से मांगूँ अल कलम, तो वो मुझे वो दूसरे फाउंटेन पेन वगैरह नहीं देगा, बल्कि ये मार्कर उठा कर देगा जिससे मैं इस पर लिखता हूँ, क्योंकि ये ख़ास है इसके लिए, तो वो ये उठा कर देगा। और अगर मैं कहूँ कलम, तो वो कोई भी दे सकता है। अगर मैं उसको कहूँ भाई मार्कर क्यों नहीं दिया, तो वो कहेगा जी आपने कोई ख़ास तो किया नहीं है, आपने आम कलम मांगा था, मैंने एक कलम उठा कर दे दिया। लेकिन जब अल कलम कहा जाएगा तो फिर कहने वाला और समझने वाला दोनों को मालूम है कि कलम से मुराद यहाँ पर कोई ख़ास कलम है, और ख़ास इस वक्त हमारे पास कौन सी है? यही मार्कर ख़ास है जिससे हम पढ़ रहे हैं। इसी तरह किताबुन का तर्जमा है कोई भी किताब, चाहे वो अरबी की हो, उर्दू की हो, फ़ारसी की हो, इंग्लिश की हो। लेकिन जब हम इस वक्त इस क्लास में बैठे हुए हैं और अब मैं कहूँ अल किताबु, तो इससे मुराद वो नहू की किताब जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, जो हमारे नज़दीक इस वक्त ख़ास है। इसमें फिर बाकी किताबें दाखिल नहीं होंगी। मैं क्लास में आया, नहू का घंटा पढ़ा रहा हूँ और तालिब इल्म से मांगो अल किताब, तो वो मुझे फ़ारसी की या उर्दू की किताब उठा कर नहीं देगा, बल्कि यही नहू की किताब उठा कर देगा, क्योंकि इस घंटे के साथ ख़ास यही किताब है। तो इस एतबार से ये ख़ास होगा, और अलिफ लाम दाखिल करने से हर चीज़ को हम नकीरा को मारिफा बना सकते हैं। यहाँ बिनतुन था, इस पर अलिफ लाम दाखिल कर लो, अल बिनतु हो गया, अल बिनतु। बिनतुन कोई लड़की, आम लड़की कोई भी हो सकती है। अल बिनतु ये हमारे जहन में कोई होगी जो ख़ास लड़की है। इसी तरह माउन, कहीं का भी पानी हो सकता है, कोई भी पानी हो सकता है, कुएं का हो, चश्मे का हो, नलके का हो, या कुछ भी हो। लेकिन जब हम अल माउ कहेंगे, अल माउ, तो इससे हमारे नज़दीक उस वक़्त कोई ख़ास पानी होगा। जैसे हम गर्मियों में अगर कभी ज़रूरत पड़े पानी मांगने की और हम माउन ना मांगे, अल माउ मांगे, तो मतलब होगा ठंडा पानी लाओ। और अगर हम माउन मांगे तो वो गर्म भी ला सकता है, ठंडा भी ला सकता है, कुएं का भी ला सकता है, चश्मे का भी ला सकता है, नलके का भी ला सकता है। लेकिन बहुत तेज़ गर्मी हो, प्यास लगी हो, पसीना हो, और बंदा कहे कि अल मा, इसका मतलब है कोई ख़ास पानी तलब कर रहा है। तो गर्मी में ख़ास पानी कौन सा तलब करेगा? ठंडा ही पानी तलब करेगा। तो ये अल मा अब ख़ास हो गया। आपके पास एक फार्मूला आ गया कि किसी भी नकीरा को अगर मारिफा बनाना हो तो आप उस पर से दो तनवीन हटाकर अलिफ लाम लगाकर आखिर में एक पेश दे दो, तो आपका वो नकीरा मारिफा बन जाएगा। उर्दू में नकीरा की पहचान कोई या एक या कुछ से होती है। जैसे रजुलुन, इसका तर्जमा हम करेंगे कोई मर्द, एक मर्द। या माउन का तर्जमा हम करेंगे कुछ पानी, कुछ पानी। देखिए, कोई, एक या कुछ से उर्दू में नकीरा की पहचान होती है। और मारिफा के लिए हम क्या करते हैं? यही अर्रजुलु अगर हम बना देंगे, अर्रजुलु, अर्रजुलु, तो इस पर अब एक कोई नहीं लगेगा, सीधा हम लिखेंगे अर्रजुलु मर्द। अर्रजुलु का तर्जमा मर्द से किया जाएगा, और रजुलुन का तर्जमा कोई मर्द, एक मर्द। और माउन कुछ पानी, और अगर हम इसी को मारिफा बना देंगे अल माउ, तो अब इसका तर्जमा होगा पानी। रजुलुन कोई मर्द, एक मर्द। अर्रजुलु कोई ख़ास मर्द होगा। अब इसका तर्जमा हम ख़ास से नहीं करेंगे, मर्द करेंगे जब, तो पता चल गया कि ये ख़ास है। मस्जिदुन
कोई मस्जिद, एक मस्जिद कहीं की भी हो सकती है। जब हम कहेंगे अल-मस्जिदु तो कोई ख़ास मस्जिद ही मुराद होगी। इसी तरह हम कहते हैं कुरआनुन, कोई कुरान भी हो सकता है, चाहे वो हिफ्ज़ वाला हो, नाज़रे वाला हो, तर्जमे वाला हो, बगैर तर्जमे के हो। लेकिन जब हम कहेंगे अल कुरआनु तो इसका मतलब है ख़ास वो कुरान जो मैं तिलावत करता हूँ या जो मैं जिस पर तर्जमा पढ़ाता हूँ, या तफसीर वाला मेरे नज़दीक ख़ास होगा, जो भी मेरे नज़दीक ख़ास होगा। और उस वक़्त मैं जब अल कुरान कहूँगा इसका मतलब कोई ख़ास कुरान है जो मेरे जहन में है और जो मुझे मालूम है कि मैं कौन सा पढ़ता हूँ, कैसा पढ़ता हूँ, वो ख़ास हो जाएगा। कुरान तो सारे ही ख़ास हैं, लेकिन कोई तर्जमे वाला है, कोई बगैर तर्जमे के है, किसी में फ़ारसी तर्जमा है, किसी में उर्दू तर्जमा है, कोई हिफ्ज़ का है, कोई नाज़रे का है, तो अलग अलग हर इसकी किस्में हैं। तो अब अल कुरान मदरसे का तालिब इल्म हिफ्ज़ का मांगेगा तो अल कुरान से मुराद वो हिफ्ज़ वाला कुरान होगा, वो नाज़रे वाला कुरान नहीं होगा। तो कुरआनुन कोई कुरान, एक कुरान से मुराद है कोई भी हो, नाज़रे वाला हो, हिफ्ज़ वाला हो। और अल कुरान और किसी भी साइज़ का हो, अल कुरान जब बोला जाएगा तो उससे कोई ख़ास ही मुराद होगा। इसी तरह से शहरों के नाम भी मारिफा होते हैं, शहरों के नाम भी ख़ास होते हैं। जैसे कश्मीर, ये कश्मीर ख़ास है क्योंकि कश्मीर एक ही है, या अगर कोई दूसरी होगी भी वो उनके नज़दीक ख़ास होगी और हमारे नज़दीक ये ख़ास है। इसी तरह अल हिंद, ये भी ख़ास है। पाकिस्तान, ये भी ख़ास है। और इसी तरह मुल्कों के, शहरों के जो नाम हैं ये भी क्या होते हैं, मारिफा होते हैं। इसी तरह जो मर्द और औरत के नाम हैं, यानी इंसानों के जो नाम हैं वो भी मारिफा हैं। क्यों? इसलिए कि हर बंदा ख़ास ही होता है। जैसे मेरा नाम मारूफ़ है तो हमारे घर में मैं ख़ास एक बंदा हूँ। अगर मेरे नाम का कोई दूसरा भी है तो वो उनके वहाँ ख़ास है, हमारे यहाँ मैं ख़ास हूँ। या आपका जो नाम होगा साजिद है, माजिद है, जो भी है, तो वो एक ख़ास नाम होता है, हर एक उस नाम का होता नहीं है। अगर मोहल्ले में 5-6 होंगे लेकिन घर में वो ख़ास है। ये वाले बंदा बोलने से ये मुराद है। हालांकि जैसे देखिए, ये हम एक नाम लिखते हैं मुहम्मदुन, मुहम्मदुन, इसमें एक कायदा टूट रहा है। मुहम्मदुन, इसमें हमने बताया था कि नकरा की इलामत 2 पेश है, लेकिन वहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि हर जगह नहीं है, क्योंकि जो नाम है इनके आखिर में 2 पेश आएंगी लेकिन फिर भी ये मारिफा रहेंगे और इन पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा। अल मुहम्मद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद पहले ही से ख़ास है, इसको ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नाम हैं जिन पर अलिफ लाम आता है, वो इंशाअल्लाह आगे चलकर तफसील आएगी, लेकिन अक्सर नामों पर ऐसे आता नहीं है। जैसे मारूफुन, तो इस पर भी 2 पेश आ रही है, तो ये आम नहीं है, ये ख़ास है। इसी तरह साजिदुन, साजिदुन, जब ये किसी का नाम हो गया तो फिर ये ख़ास है। माजिदुन, जब ये किसी का नाम आ गया तो अब ये क्या है, ख़ास है। और ख़ास होने के बावजूद भी इस पर 2 पेश आएंगी। इसी तरह मर्दों के हों या औरतों के हों, दोनों ख़ास हैं। अलबत्ता औरतों के नाम पर 2 पेश नहीं आती। जैसे फातिमातु, आयशातु, ये मर्दों के नाम हों या औरतों के नाम हों, ये ख़ास हैं, ये आम नहीं है। इन पर तनवीन आती है, इन पर तनवीन नहीं आती है, लेकिन ये तनवीन आने के बावजूद भी ये ख़ास ही रहेंगे, ये आम नहीं होंगे। तो आपके सामने खुलासे के तौर पर पेश करता हूँ कि हर ज़ुबान में ख़ास व आम होते हैं, उसको नकीरा और मारिफा कहते हैं। अरबी में, उर्दू में भी नकीरा और मारिफा कहते हैं। इंग्लिश में उसको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कहते हैं। और इस कॉमन और प्रॉपर का अरबी में एक तरीका है कि कॉमन नाउन अगर कोई हो जिस पर तनवीन हो, उससे अगर आपको प्रॉपर बनाना हो तो आप उस पर अलिफ लाम दाखिल कर सकते हैं। यह अलिफ लाम आप किसी कॉमन नाउन पर दाखिल करेंगे
वो प्रॉपर बन जाएगा। जैसे वलदुन है हमारे पास, वलदुन, इसके शुरू में अलिफ लाम लगा देना है, तो अलिफ लाम और आगे वही वलदु, अल वलदु, तो ये बन गया हमारा आम से खास बन गया, नकीरा से मारिफा बन गया। मारिफा की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन उनसे हमें यहाँ पर बहस नहीं करनी। यहाँ पर हम एक ही किस्म अलिफ लाम वाली बता रहे हैं, ताकि आपके जहन में कुछ थोड़ा बहुत कंसेप्ट आ जाए, और आगे चलकर जब हम दूसरी बड़ी किताबें शुरू करेंगे वहाँ आपको समझना आसान होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।